Hi, this is Komal Chaudhary, and I welcome to all my YouTube channel GS365. And the topic for the day is silent feature of the Indian Constitution. Still, I am requesting again to subscribe the channel to get more information. Videos channel पे आ रही हैं, हर डे वीडियोस अपलोड हो रही है, so that you can get the more benefit through the video. I request you please subscribe the channel. We have two playlists for the day. One is reasoning and another one is basic foundation to advanced polity. So we are initiating two playlists, and within 2 or 3 days the current affairs videos will be available on the portal also. So I request you to please subscribe the channel to get the more information, to get the more benefit in respect to the exam. If you are watching the video, you can easily differentiate between the others and GS365. GS365 is committed to their comprehensive completion of the syllabus. It will be huge benefit for you. So without any delay, we are starting a new topic, that is silent feature of the Indian Constitution. So I am closing this page and starting the panel. So the topic is silent feature of the Indian Constitution. This is the topic for the day, and it is a huge topic. In this topic, we will cover the basic term and what is the basic difference between the term, and the term was related to a dedicated topic, so we will discuss that term further. But right now we will discuss a basic detail of the Indian Constitution and basic feature of the Indian Constitution. So the topic is silent feature of the Indian Constitution, right? So Indian Constitution is a unique in its component and spirit. It should be noted at the outset. It should be noted at the outset that a number of original feature of the Indian Constitution, as adopted in 1949, have undergoes a substantial changes on account of several amendments. Particularly, we talk 7th Constitutional Amendment Act, 42, 44, 73, 74, 97, and so on. So, in fact, the 42 Amendment Act 1976 is known as the mini constitution of the Indian Constitution. Clear? Why? It is said that the 42 Amendment Act is a mini constitution because of its importance and large number of the changes has done by this Amendment Act. So we are discussing the feature of the Indian Constitution. So first feature of the Indian Constitution is it is the lengthiest written constitution of the world. यानी कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. इट इज सिंपल. When we classify the constitution into two parts, we have one written constitution and another one is unwritten. So we can divide the constitution into two. One is written constitution and another one is unwritten constitution. Simple. If we talk about the example of the both, example of written constitution is America and India as well, but the unwritten constitution is related to the Britain. यानी कि Britain has unwritten constitution and the America and India and other countries written constitution. Okay, so the example of written constitution is America, India, and so on. If we talk about unwritten, so we have a very good example of Britain. I hope it is clear now. यानी कि संविधान को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान. लिखित संविधान जिनका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अलिखित जिनका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नहीं है. यानी कि जो बेसिक कानून है वो किसी एक डॉक्यूमेंट में समराइज नहीं है. ठीक है. ब्रिटेन का कानून ऐसा नहीं है कि अलिखित. अलिखित क्या है? अलिखित से मीन है कि जो बेसिक कानून है उनका एक जगह समराइजेशन नहीं है, यानी कि एक जगह उनको इकट्ठा करके नहीं लिखा गया है. बस बेसिक डिफरेंस इतना है. ठीक है. सो जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. व्हाई इट इज लेंथिएस्ट, इट इज अनदर टॉपिक, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है. राइट. सो राइट नाउ India's constitution is the lengthiest written constitution in the world. Why? Because of it covers comprehensively, elaborated and detailed document. यानी कि यह जो संविधान है भारत का संविधान कॉम्प्रिहेंसिवली समग्र रूप से पूरे कवर करता है. विस्तारित है, एलोबरेटेड है, यानी कि एकदम विस्तार में लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है.
इसलिए क्या है कि भारत का संविधान एक सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे, एक दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। क्लियर? अगर मैं बात करूं ओरिजिनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड, इट हैज ए प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू 22 पार्ट्स एंड इट हैज 8 शेड्यूल। यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब भारत के संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां दी गई थी। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, what is the situation at present? In present, it consists approx 465 articles, which is divided into 25 parts, and it has 25 parts. It has 12 schedules. To simple manner, I can write here the thing what I mention in my words. Originally, Constitution has one preamble, 395 articles, which is divided into the 22 parts, and 8 schedule. Simple. If we talk about the present situation, what is in it at present? So at present, it has a preamble, 465 articles approx, which is divided into the 25 parts, and 12 schedules. So what was happened? Why the number has increased? Because of various amendments carried out since 1951, and it has deleted about 22 articles and one part, that was part number 7, and added approx 95 articles and 4 parts and 4 schedules. If you talk about the parts, specific part was 4A, 9A, 9B, 14A. If we talk about the schedules, schedule number 9, schedule number 10, schedule number 11, schedule number 12, parts and schedule and articles were added by the various amendment. Okay, so no other constitution in the world had so many articles. That is why India's constitution is the lengthiest written constitution in the world. Okay, so I hope it is clear now why the constitution is so lengthy. We will discuss it right now, but the basic, what was in the initial time in the constitution and what is the situation at present, how many articles we have, how many parts we have, how many schedules we have right now when I was recording my lecture. So the next topic is the key factors of the Indian constitution, why it is so much lengthy. Now we are discussing, just a minute. Sorry. So we are discussing the key factors why the constitution is so lengthy. First of all thing, the factor is geographical factor. Now we are discussing the key factor why the constitution, the Indian constitution is so lengthy. So the factor is geographical factor. In simple manner, we all know that India is the 7th largest country as a geography when we talk. Apart from this, our country has a great deal of variety of in terms of language, race, religion, कल्चर एंड ज्योग्राफी। यानी कि जब हम बात करते हैं भारत के ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की, तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भौगोलिक रूप से, और भौगोलिक रूप से बड़े होने के साथ साथ भारत में पाई जाती विविधता, विविधता भाषा के आधार पर, विविधता जाति के आधार पर, विविधता धर्म के आधार पर। तो इन सब चीजों को जब समराइज किया गया कॉम्प्रिहेंसिवली, तो क्या हुआ कि भारत का संविधान का जो आकार है वो बड़ा हुआ। यानी कि ऑल दीज कंसिडरेशन कंट्रीब्यूट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूज साइज, यानी कि भारत के संविधान का जो आकार है उसको बढ़ाने में उन्होंने योगदान दिया। तो इट वाज द ज्योग्राफिकल फैक्टर अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ कंट्री, वी हैव मल्टीपल races, religion, culture, and we have a very varieties of this. So it contribute
to increase the size of the Indian constitution. I hope it is clear right now what is the factor of the geography and the geography to increase the size of Indian constitution. I hope it is clear now. Next factor हम बात करते हैं. Next factor we have a next factor historical factor. How can the history increase the size of Indian constitution? How can the historical part contribute to increase the size of Indian constitution? So some historical issues such as Government of India Act 1935 have a huge role in our constitution. Majority of provisions of this act were incorporated either directly or indirectly. यानी कि जब हम बात करते हैं भारत के संविधान के ऐतिहासिक रूप की, तो उसमें एक भारत शासन अधिनियम का जो अनुच्छेद है, जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935, उसका एक ह्यूज रोल है. उसके जो प्रशासनिक संबंधित जो अनुच्छेद हैं, उसकी धाराएं हैं, लगभग भारत का 70% संविधान कवर करता है भारत शासन अधिनियम. तो ऐतिहासिक रूप से ऐसे एक्ट से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, जिससे क्या हुआ, भारत के संविधान का साइज बढ़ा है. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ. ठीक है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म कंट्रीब्यूशन, सॉरी यूनियन, आई एम सॉरी व्हाट इज नॉट कमिंग, यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट. तो थर्ड पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट. What is meant by this provision? It is simple. Center and state do not have their own constitution. यानी भारत में भारतीय संघ और राज्य के पास अलग अलग संविधान नहीं है. Like America has dual system. State has own constitution, own laws, and federal government has own. Because of there is a federal system. But India has another level of federal system. Like India has a uniform constitution for both, but state has own subject to make law. So we have another level, another type of federal system, but we have also. So it is clear, I hope, what is the mean by uniform constitution and central and state. Clear? Next point है legal luminaries dominance. Fourth point आता है legal luminaries dominance. What is meant by this point? Those who are engaged in the Constituent Assembly, Constituent drafting, those who are drafting the Constitution are largely from the legal background, legal profession, and as a result, they incorporated all the legal consideration into the document. In simple way, अगर मैं कहूँ कि जो भारत के संविधान बनाने वाले जो सदस्य थे, वो ज्यादातर वकील प्रोफेशन से थे. जिस तरीके से वकील कोई बात घुमा फिरा के लिखता है, उसी तरीके से भारत के संविधान को मैं बहुत सारी चीजें घुमा के लिखी हुई हैं, जिससे क्या हुआ है, जो साइज है उसको बढ़ा मिलाया बनाने की साइज बड़ा हुआ है. आई होप इट इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रोन फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन. तो दिस वाज द की फीचर व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो लेंथी. दीज आर द 4 मेजर रीजन एंड अनदर वन इज ड्रोन फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन. We all know, we discussed in previous class that the constitutional makers go through approx 60 countries before the framing the constitution. तो यानी कि भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था बिफोर द ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज से हमने अपने संविधान को लिया है. लाइक फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए, डीपीएसपी फ्रॉम आयरलैंड, है ना. इट हैज अ ह्यूज नंबर. We will discuss it later. तो इट इज जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से. आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर नाउ. नाउ वी विल डिस्कस फर्दर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. आई होप कि अभी तक आपको सब समझ में आ रहा है
and you are enjoying the class. It is not a boring class, you are enjoying actually. Okay, so जब हम बात करते हैं blended of the rigidity and flexibility, यानी कि rigidity को समझते हैं हम अनम्य और flexibility को समझते हैं नम्य, या rigidity को हम कह सकते हैं कठोर और flexibility को बोलते हैं नरम. ठीक है, तो भारत का संविधान नरम और कठोर का समन्वय है. क्लियर? इस पर लाइन का सिंपल मीनिंग है. ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? सो वन, जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वन दैट रिक्वायर ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, यानी कि वन दैट रिक्वायर ए स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर अमेंडमेंट, it will be understood as a rigid constitution. If on the other hand we can say one that can be amended by in simple manner as ordinary law are made. Clear? यानी कि सिंपल मीनिंग में अगर मैं बात करूं, अगर संविधान संशोधन आसानी से हो जाए, यानी कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, जैसे कि सामान्य कानून बदले जाते हैं, उसी तरीके संविधान संशोधन अगर होता है तो उसे कहेंगे हम फ्लेक्सिबल, यानी कि नरम, यानी कि easy to amend, easy to amend है तो क्या हो गया? फ्लेक्सिबल, लाइक ब्रिटेन. अगर easy to amend नहीं है तो क्या हो गया? रिजिड हो गया, लाइक यूएसए. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. So now what is the status of India? Because we are discussing Indian constitution, we are discussing the constitution of India. So what is the status of India? Indian constitution is neither rigid or nor flexible but a synthesis of the both. It is simple manner, अगर मैं कहूं कि भारत का संविधान ना तो नरम है यानी कि ना तो नम्य है, ना ही कठोर है यानी कि ना ही अनम्य है, बल्कि दोनों का समन्वय है. आई होप दिस लाइन इज वेरी क्लियर टू यू. Now if we talk about the India, what is the status of India? India is neither rigid nor flexible. Clear? What is meant by? यानी कि भारत के जो कुछ प्रोविजंस हैं संविधान के, वो कुछ तो सिंपल मैनर से कर सकते हैं और कुछ के लिए क्या है, स्पेशल प्रोसीजर की बात की जाती है. ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, भारत का संविधान ना तो नम्य है और ना ही अनम्य है, बल्कि दोनों का समन्वय कहा जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. तो व्हाट इज मीन बाय द सिंथेसिस ऑफ rigidity and flexibility? Okay, so what is mean by rigidity and flexibility synthesization? तो भारत के संविधान में जो दिया गया है रिजिडिटी और उसके बारे में जो बात की गई है, समन्वय की बात की गई है, उसका क्या मतलब है? ठीक है, so we have a dedicated article 368 which is related to the amendment of the Indian Constitution. It provides two type of amendment. One is simple majority is not come under the article 368. Number one part, it is very important कि simple majority is not the provision which comes under article 368. I am noting down with the red mark. Simple majority is not come under article 368. It is red mark, sometimes it can be seen in the book, but I am telling you by the reliable resources, so it is not come under the article 368. Now we will discuss article 368 and its type of amendment. So Indian Constitution, article 368 provide two type of amendment, two type of procedure to amend. यानी कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधन की बात करता है. आई होप इट इज क्लियर. वन इज सिंपल, सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. वन इज some provision can be
amended by a special majority of the parliament. Sorry, special majority of parliament. I hope it is clear. Now, what is meant by special majority? What is meant by special majority? A 2/3 majority of members of each house present and voting. यानी कि 2/3 सदस्य संसद के, या जिस सत्र की बात हो रही है, जिस सभा की बात हो रही है, यानी कि अगर लोकसभा की हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा सदस्य में जो उपस्थित सदस्य हैं और जो वोट करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 प्लस लोकसभा का जो बहुमत है, सिंपल बहुमत, यानी 50% से अधिक वो होना चाहिए। क्लियर? यानी कि अगर मैं बात करूं सिंपल मेजोरिटी, सिंपल नहीं स्पेशल, सॉरी, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% से अधिक, दिस इज द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। आई होप दिस इज क्लियर। यानी कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस इज प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, यानी जिस हाउस की बात हो रही है उसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए एंड 50% से अधिक क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए टोटल नंबर्स का। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अमेंडमेंट विच इज गिवन इन आर्टिकल 368 according to the Indian Constitution. Okay, now we proceed further. The second type of the amendment of Indian Constitution. So, some provision, simple है, some provision can be amended by special majority of the parliament with rectification of half of the total state. इन सिंपल मीनिंग, यानी कि जो प्रोविजन नंबर फर्स्ट तो था ही, लेकिन इसमें ऐड किया गया है रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ स्टेट, यानी कि जो भारत के कुल राज्य हैं उनका भी हमें क्या चाहिए, सहमति चाहिए आधे से अधिक राज्यों की। यानी कि ऐसे कुछ प्रोविजन है, दो प्रोविजन की हमने बात की कि अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, दो तरीके से किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। पहला, स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 51%। दूसरा, स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए प्लस 50% से अधिक, यानी आधे से अधिक राज्यों का हमें सपोर्ट चाहिए, तब कोई बिल पास होगा जो किससे जुड़ा होगा, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर? वो वाला पॉइंट मैं बता चुका हूं कि सिंपल मेजोरिटी से जब बात की जाएगी, सिंपल मेजोरिटी, ऐसे कुछ प्रोविजन जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जाते हैं उनको संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता है। दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर द आर्टिकल 368 विच इज लीड बाय simple majority. Okay, I hope this is clear. Now we are proceed further for the next feature of the Indian Constitution, and that is federal system with unitary bias. ठीक है, federal system यानी भारत का संविधान संघात्मक संविधान होने के बाद उसका एकात्मकता की ओर झुकाव हमें देखने को मिलता है, और इससे रिलेटेड ही पॉइंट है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मीन बाय फेडरल? व्हाट इज द बेसिस ऑफ फेडरल? व्हाट इज द फीचर ऑफ फेडरल? So when we will talk about the federal system, so it has some points like two level of the government, second, division of the power, supremacy of the constitution, written constitution, independent constitution. These are the basic feature of the federal system. So we all are aware that we have these features in our constitution.
If you talk about two level of government, we have a central government, we have a state level government. In fact, we have a 3-tier government, local bodies, right? Like division of, if you talk about division of power, we have division of power. State has own powers, center has own powers. Written constitution, we have written constitution. Supremacy of constitution, we have supremacy of constitution. Independent judicial system, we have independent judicial system also. So we can say na कि India is a federal system. However, India also contain some unitary feature, that is non-federal feature. That is why the political scientist says India has federal system with unitary bias, right? So what is the feature of unitary system? It has a strong center, we have a strong center. Single constitution, we have single constitution. Single citizenship, we have single citizenship. Flexibility of the constitution, we have flexibility of the constitution. Last, we will discuss this point. Integrated judiciary point, we will discuss further this point also. Next, appointment of a state governor. We all are aware that the central government appoint the governor. We will discuss in later on the next chapters as well. Next, all India service. We all are aware about this. The Indian civil services. Indian civil service, if you talk about IAS, IPS, IFOS, these are all India service, and the appointment of this service was done by the central level, central government, but they work under the state government. It is also a unitary feature. Emergency provisions. When we talk about the emergency provisions, the state government related power was go to central level, and the state government has nothing to do. So basic feature of the unitary system is it has not dividation the powers. It has single-handed government. Simple mean we can understand the diagram. This is center, this is state, this is local bodies. This is center level, this is state level, this is local bodies, third tier. But the dividation of subject is not properly. When we talk about the federal system, central level is this, central level, state level, and local level, local bodies. We have seen here clear dividation of the subjects. The basis of the dividation of the subject is called federal system. If the subject is not divided properly, we can say that system is unitary system. Moreover, the word federation has not nowhere used in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है. इन अदर हैंड आर्टिकल 1 डिस्क्राइब द इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हालांकि अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा, एक वर्ड को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस वर्ड राज्यों का संघ? इट एम्प्लाइज टू थिंग. वन इज इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट. सिंपल, यानी कि जो भारत का संघ है वो राज्यों के बीच एक एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बना हुआ है. सेकंड, नो स्टेट हैज राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन, यानी कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है, अधिकार नहीं है. सिंपल. तो हमने देखी दो चीज कि फेडरेशन वर्ड संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, नंबर 1. दूसरा, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा, और इस वर्ड से क्या मतलब है कि भारतीय जो राज्य हैं वो किसी एग्रीमेंट के द्वारा इस संघ का हिस्सा नहीं बने हैं. दूसरा, एक बार हिस्सा बनने के बाद उनको संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है, अधिकार उनके पास नहीं है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. इट इज क्लियर, तो कमेंट वाओ. सो वी विल डिस्कस फर्दर नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम of the government. What does mean this? Constitution of India has adopted British parliamentary system of the government rather than the presidential system of America. Okay, so Indian constitution has the British parliamentary system. Okay, so we have British parliamentary system.
we had another option that was presidential system of America. Presidential system of America. What is the difference between these? What is the difference? When we talk about the British parliamentary system, it means it is based on the cooperation and coordination of the two organizations that were legislation and executive. यानी कि जब हम बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो उसका जो बेसिस है, इस सिस्टम का बेसिस क्या है? कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. एंड कोऑर्डिनेशन. किनके बीच में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. ठीक है, राइट. सो दिस प्रोसेस is called also called as the Westminster model. This process called the Westminster model also. What is the feature of this? It creates the responsibility. In simple manner, अगर हम बात करें ब्रिटिश संसदीय रूप की, तो उसमें जो की फीचर है वो क्या है? सहयोग और समन्वय की बात की गई है. सहयोग और समन्वय की बात की गई है. इस व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, जो आता है उत्तरदायित्व के साथ. यानी कि जब कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात होती है, तो वो उत्तरदायित्व जो होता है उसको बढ़ावा मिलता है. ठीक है. तो इफ वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन ए डॉक्ट्रिन दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर. सो इट इज बेस्ड ऑन a doctrine that is separation of power. I hope this is clear. Separation of power, clear, between two organs, that is executive and legislative. Legislative and executive. I hope this point is clear. तो भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने उत्तरदायी सरकार को चुना. यानी कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चुनती है. यहाँ पे उत्तरदायित्व हमें नहीं देखने को मिलता है. आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा. दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री. इट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम? इट इज बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. एंड नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का क्या स्टेटस है इस चीज को लेके, कि भारत का संविधान किससे समझा रहा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंट्रल लेवल बट ऑल्सो इन द स्टेट. ओके. सो भारतीय संविधान न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्थापित करता है. वी ऑल आर अवेयर अबाउट द पार्लियामेंट. इट इज ऑन द सेंट्रल लेवल, एंड if we talk about the state level, we have state legislative assembly. Clear? So we have another level, that is third tier local bodies, right? So we establish not only the central level but also the state level established as a parliamentary system. Clear? I hope this point is clear. Now we will discuss the feature of parliamentary system, the feature of parliamentary government. We adopted the parliamentary government system, so we also should have much aware about the feature of the parliamentary government system. Why we have? What is the feature we have? So it has two type of head. One is nominal and another one is real executive. Okay. So when we talk about the parliamentary system, it has two type of head. One is nominal and another one is executive. यानी कि एक नामात्र का प्रमुख होता है और एक रियल प्रमुख होता है. जब बात करते हैं हम नॉमिनल हेड की, इट इज प्रेसिडेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल एग्जीक्यूटिव, दैट इज पीएम. क्लियर? यानी कि जो नॉमिनल को क्या बोलेंगे, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है. जो नॉमिनल प्रमुख होगा उसको राष्ट्रपति बोलेंगे, और जो वास्तविक प्रमुख होता है उसे बोलेंगे प्रधानमंत्री. राइट. नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेजोरिटी ऑफ रूल, मेजोरिटी पार्टी रूल. आप सभी को पता है कि लोकसभा में चुनाव होने से जिस पार्टी का अधिक बहुमत होता है उसी की पार्टी की सरकार बनती है. ठीक है. दिस पॉइंट रिलेटेड टू द दिस. नेक्स्ट है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी कि सामूहिक रूप से हम बात करते हैं उत्तरदायित्व की, क्योंकि हमने
पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों लिया था? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम उत्तरदायित्व की बात करता है, उत्तरदायी सरकार की बात करता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करता है। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेजिस्लेटिव के लिए होगी, संसद के प्रति उत्तरदायी होगा सब। यानी कि जो सरकार, जो कार्यपालिका बनेगी वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। नाउ आई एम आस्किंग अनदर क्वेश्चन टू यू, इफ यू कैन कमेंट मी दैट व्हाट इफ सिंगल मेंबर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। यानी कि अगर एक व्यक्तिगत रूप में कोई कार्यपालिका का सदस्य है तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेटिव, दिस इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट गवर्नमेंट। लीडरशिप ऑफ पीएम और चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो प्रमुख होते हैं, रियल प्रमुख होते हैं, उनकी लीडरशिप, और क्या होता है लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, की फीचर होता है, की फैक्टर होता है। लाइक वी ऑल आर नो अबाउट द प्रधानमंत्री मोदी सरकार राइट नाउ, इट इज द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ मोदी सरकार, राइट। नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। इफ यू टॉक अबाउट लोकसभा और असेंबली, बोथ आर द लोअर हाउस एंड इट कैन बी डिसॉल्व, so it is the also feature of the parliamentary government system, right? Now we have established a British parliamentary system, so have we copied that system or not? Question is this. So we did not copy that system, we established parliamentary system largely based on the British parliament pattern, but there are some fundamental difference between Indian parliamentary system and British parliamentary system. Now what was the difference between this? यानी कि हम जब बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो हमने कॉपी नहीं किया है, हमने कुछ चेंजेस के साथ उसको स्थापित किया है। किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश संसदीय रूप। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। One difference is this, कि Indian state has an elected head। जब हम बात करते हैं राष्ट्र प्रमुख की, तो हमारा राष्ट्र प्रमुख चुन के जाता है, चुनाव के जरिए वहां पहुंचता है। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश स्टेट हैज हेरिडिटरी हेड, यानी कि उनका जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है। मैं बात कर रहा हूं क्राउन की, और जब हम बात करते हैं इंडियन स्टेट की, तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से अपने पद तक पहुंचते हैं, और वहीं ब्रिटिश क्राउन जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। तो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट। नाउ वी आर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल। नेक्स्ट की फीचर है हमारा synthesisness of the parliament sovereignty and judicial। Now this is the another feature of the Indian constitution। Now when we talk about the parliament sovereignty, the doctrine of sovereignty of parliament associated with the British parliament, while the principle of judicial supremacy with the American supreme court। यानी कि जब हम बात करते हैं ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता की, तो उसकी जो डॉक्ट्रिन है वो निकलती है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जहां पे कहा जाता है कि ब्रिटिश की संसद सब काम कर सकती है, बशर्ते कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब काम कर सकती है, इतनी वो उनको फ्रीडम है, राइट। जब हम बात करते हैं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय ऑफ अमेरिका, उसकी सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो वो निकलता है सर्वोच्च न्यायालय से। कहां से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। यानी कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय की संप्रभुता है, जो उसकी सुप्रीमेसी है, वो कहां से निकलती है? वो निकलती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए। और वहीं अगर हम अब बात करें संसदीय संप्रभुता की, तो वो उसकी डॉक्ट्रिन निकलता है, वो निकलता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहले हमने बात की दो डॉक्ट्रिन्स की, दो सुप्रीमेसी की। एक सुप्रीमेसी होती है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, जिसे बोल रहे हैं पार्लियामेंट सोवरेनिटी। दूसरी हमने बात की जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी कि न्यायिक सर्वोच्चता। ठीक है, जो ब्रिटेन की संप्रभुता जो है ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता, वो निकलती है ब्रिटिश संसद से। वहीं अगर हम बात करें न्यायालय सर्वोच्चता, न्यायालय सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो वो निकलती है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, तो हम बात करते हैं भारत की क्या स्थिति है, द सिचुएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रीफर्ड ए
proper synthesis between the principle of parliamentary sovereignty and the American principle of the judicial supremacy. यानी कि हमने बीच में दोनों का समन्वय की बात कही, सिंथेसिस ने हमने बात की, हम दोनों के एक्सट्रीम के लिए नहीं गए, यानी कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट एक्सट्रीम नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट सोवरेनिटी नहीं है, सोवरेनिटी इन द सेंस कि पार्लियामेंट संप्रभु नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं, पार्लियामेंट सब कुछ बना, सब नियम कानून बना सकती है ना, और उसके ऊपर किसी का भी जांच और कंट्रोल चेक बैलेंस नहीं है, ठीक है। वहीं ऐसा नहीं है कि जुडिशियल ही जैसे जिस तरीके से अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय काम करता है उस तरीके से भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी काम करे, तो हमारे यहां पर है दोनों का समन्वय की बात, ठीक है, क्लियर। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ऑन द वन हैंड कैन डिक्लेयर एनी पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कैसे कर सकता है? थ्रू इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड जुडिशियल रिव्यू द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन बी सप्रेस, इट कैन नॉट बी सप्रेस एंड डिमाइंड, यानी कभी भी जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है उसको संसद परिवर्तित नहीं कर सकती है, ये आधारभूत संरचना का भाग है। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, अब ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी करता रहे, है ना, हमने बात की समन्वय की, दोनों की बराबरी की बात की, दोनों को साथ लाने की बात की, क्योंकि हमारा बेसिस क्या था? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट कैन अमेंड ए मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी कि भारत की संविधान भी संविधान के एक बड़े हिस्से को बदल सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, है ना, और पार्लियामेंट ने संविधान संशोधन करके उस जजमेंट को ही चेंज कर दिया। तो पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द अदर हैंड, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ विच इज मेड बाय पार्लियामेंट null and void, unconstitutional by the power of judicial review. I hope this point is clear. Now we are proceeding for the next feature of the Indian Constitution, that is integrated and independent judiciary. So next point is integrated and independent independent and integrated judiciary. Constitution establishes a judicial system that is integrated and independent as well. यानी कि भारतीय संविधान स्वतंत्र और एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। What is mean by that? Simple. We can understand through this diagram. This is the integrated system. There is Supreme Court, there are high courts, and there are subordinate courts. I hope this is clear. So Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system in the country, right? And below it there are high courts at the state. Under a hierarchy, there is hierarchy of subordinates and district level courts. What is meant by subordinate courts? Subordinate courts means district and other lower courts, right? So this single system of the court enforce both the central and state laws. यानी कि यही एक सिस्टम है जो पूरा क्या है, जो केंद्र सरकार और राज्य लेवल के जो लॉ रहेंगे, नियम रहेंगे, दोनों स्तर पर काम करेगा। ऐसा नहीं है लाइक यूएसए हैज अनदर सिस्टम दैट इज स्टेट लेवल स्टेट सुप्रीम कोर्ट एंड फेडरल लेवल अनदर सुप्रीम कोर्ट, राइट? सो इन द यूएसए state supreme court are more powerful than the federal court. In the only fundamental rights, in the matter of fundamental rights, federal court is more powerful. But I just want to ensure that Indian Supreme Court is the most powerful court in the world, right? It has a very, very, very big authority to do anything. We will discuss it further when we will discuss the judiciary. No need to worry. We will discuss all the thing in detail like this. Yeah. So I told you that the USA, where the federal laws are enforced by the federal court, and the state laws are enforced by the state judiciary. Because of, I already told you that
the USA has dual type of constitution. State has own constitution and federal has own constitution. The law related to the federal, it will be dealt by the federal court. If the law is related to the state, it will be dealt by the state judiciary, right? So Supreme Court is the highest court of the appeal. We all know this fact. The Supreme Court is the highest court of appeal and it is a guarantor of fundamental right. So Supreme Court, highest appeal, guarantor of fundamental right and guardian of the Indian Constitution, right? So this is a basic fact which is mentioned on the board. I will share this PPT on the Telegram channel, that is GS365 for you. The channel name is GS365 for you, right? This is the Telegram channel. You can visit here. The PPT will be available on that group. I will share after the class. So hence the Indian Constitution has made various provision to ensure its independence. हमने बात की अभी integrated and independence. So this feature was related to the integration. Now we will discuss the independence. So what is the basic thing? Then when we can say our Supreme Court is independent. So security of the tenure of the judges is important. That is why he can work freely and he can work independently. So the security of tenure of judges is mentioned in the Constitution. Fixed service, all expenses of related to the Supreme Court is depend on the constitutive fund. Ban on practice after retirement. Any judge cannot practice after the retirement because he has no interest to do, right? So he can work independently. That is why this provision is mentioned in the Indian Constitution. Next है the power to punish for it contempt vested in the Supreme Court. यानी power of contempt के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सजा भी दे सकता है. सिंपल मीनिंग यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जजेस का टेन्योर संविधान में निश्चित है ताकि वो फ्रीली काम कर सके, राइट? उनकी सर्विस है वो भी सब मेंशन है. उनकी सैलरी भत्ते सब क्या है संविधान में मेंशन है और वो कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं ताकि उनकी पावर्स और उनकी जो इंडिपेंडेंटली काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो बनी रहे. इसलिए ये सब क्लॉज भारत के संविधान में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट किए गए हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो क्षमता है उससे काम कर सके और उसको प्रभावित ना किया जाए किसी भी सरकार के द्वारा. ठीक है, क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर राइट नाउ. नाउ वी आर डिस्कस द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट. हमारे संविधान में एक नया फीचर है वो है फंडामेंटल राइट का. फंडामेंटल यानी कि वी ऑल आर नो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार. फंडामेंटल राइट आर मीन फॉर द प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. यानी कि राजनीतिक रूप से आपको क्या करना है, आपका उत्थान हो, इसलिए आपको मौलिक अधिकार दिए जाते हैं. क्लियर? दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द ऑटोक्रेसी टू द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉ ऑफ द लेजिस्लेटिव. यानी कि इनको क्यों बनाया गया? क्या? क्योंकि जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका है और कार्यपालिका है, वो अपने काम मनमाने ढंग से ना कर सके. उन पर लिमिट लाने के लिए इनका संविधान में शामिल होना इंपॉर्टेंट था, जरूरी था. और ये क्या है? एक फीचर है भारत के संविधान का. क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. क्यों शामिल किया गया था? क्योंकि इतिहास में हम देखेंगे कि राज्य ने अत्याचार किए हैं लोगों पर. कभी बात करें हम, छुआछूत वाला कॉन्सेप्ट हो गया, सती प्रथा के रूप में हो गया, है ना. लोगों को बेसिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को दबाया जाता था. इसलिए क्या कर दिया, एक क्लॉज डाल दिया गया फंडामेंटल राइट्स का कि लोगों का राजनीतिक उत्थान हो और जो कार्यपालिका है और राज्य जो विधायिका है उसकी शक्तियों पर थोड़ा सा क्या करे, लिमिट रहे, लगाम रहे, वो मनमाने ढंग से काम ना करे. ठीक है, मनमाना कोई नियम बना दिया उसको ठाला हो जेल में डाल दो, ऐसा ना हो. ठीक है, बात करें फंडामेंटल राइट्स की बेसिक फीचर्स की. दे आर जस्टिसाइबल इन नेचर. तो ये क्या होते हैं? जस्टिसाइबल होते हैं. व्हाट इज मीन बाय जस्टिसाइबल? व्हाट इज मीन बाय जस्टिसाइबल? इट सिंपल मीन दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन. यानी कि अगर इनका वायलेशन होता है तो इनके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. द एग्रीवेटिव पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, क्लियर? एग्रीवेटिव यानी कि पीड़ित व्यक्ति जो भी रहेगा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. ऐसा नहीं है कि पहले आप हायर कोर्ट जाइए फिर लोअर कोर्ट जाइए, सॉरी पहले लोअर कोर्ट जाइए फिर हायर कोर्ट जाइए देन आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. इफ यू हैव अ क्लॉज in your complaint that is related to the fundamental rights, Supreme Court cannot
डिनाई योर बेल, इट इज ऑल्सो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि अगर आप जाते हैं मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार वायलेशन हुआ है और आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी जो बेल है, सॉरी जो याचिका है, उसको खारिज नहीं कर सकता है। दिस इज ए कोर्ट डिसीजन। ठीक है, क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब आपका सपोज करो आप हैं और आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, आपके सुप्रीम कोर्ट, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल सुप्रीम कोर्ट डू? सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा अकॉर्डिंग आर्टिकल 32। वी हैव 4 रिट्स इन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 इज आल्सो फंडामेंटल राइट। क्लियर? एंड 4 रिट इज हेबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोविजन, सरसराय एंड क्वो वारंटो। These are 4 writs which has been issued by the Supreme Court according Article 32. If you are going directly Supreme Court for the violation of your fundamental right. Clear? I hope this point is clear. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, ये जस्टिसाइबल है क्या? इनको निरस्त कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं? यस, हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कुछ तर्क के आधार पर इन पर रेस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इट कैन बी रेस्ट्रिक्ट ऑन द सब्जेक्ट टू रीजनेबल। आई होप दिस इज क्लियर। इन तर्क के आधार पर इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर नॉट सैक्रोसेंट। क्या ये सैक्रोसेंट है? क्या ये इतने पवित्र है कि इनको कम नहीं कर सकते हैं? So they can be curtailed or repealed by the parliament through the constitutional amendment act, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा इनको कम किया जा सकता है। It can be curtailed by the constitutional amendment act. I hope this point is clear. This is very clear, I hope. ठीक है, now next point, they can be suspended during the emergency, यानी कि इमरजेंसी के दौरान इनको सस्पेंड किया जा सकता है। इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो एवरी फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंड और नॉट। सो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आर्टिकल 20 and 21 इट कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अपार्ट फ्रॉम दिस the fundamental rights can be suspended. Okay, I hope this point is clear. I can mention here on this, expect article 20 and 21 can be suspend. Clear? What is in it? Article 20 and 21. So article 20 says protection in respect to the conviction of offense, यानी कि क्या आप कनेक्शन जो आपने ऑफेंस किया कन्विक्शन से प्रोटेक्शन रहेगी। ये आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को उठाओ और कन्विक्ट करा दो। ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, बिकॉज ऑफ 1975 इमरजेंसी इट वाज वायलेटेड। सो इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 21, इट सेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि अभिव्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, याद आ गया। समटाइम्स हिंदी इज नॉट बिकॉज ऑफ यू आई एम यूजिंग इंग्लिश वर्ड, सो दैट इज व्हाई I am little bit trouble when I use Hindi word. So now we will discuss the next feature of the Indian Constitution. We have covered the fundamental rights. It is justiciable. It is not absolute. It can be changed. Sacrosanct नहीं है. Can be curtailed by the constitutional amendment. ठीक है? This is the basic feature of the fundamental rights. We will discuss the fundamental rights related articles in our dedicated chapter. It is very important topic and it is very, very, very important. I am again and again saying this. It is very important. So any exam you are preparing for, you have to clear on this part. So now next topic is directive principle of state policy. So next feature of the Indian Constitution is directive policy of state. Sorry, लगता है मैंने गलत लिख दिया, प्रिंसिपल है यहाँ पे, प्रिंसिपल, सॉरी। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको नाम से पता चला होगा, नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऐसे प्रोविजंस जो विधायिका को नियम बनाते समय याद रखने, निर्देश के रूप में मिले हैं,
यानी कि ऐसे तत्व जो संविधान निर्देश दे रहा है, जिनको उन्हें कहेंगे निर्देशक तत्व, निर्देश। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर, इट इज अ नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर enumerated in part 4 of the Indian Constitution, right? They can be classified 3 categories: sociologist, Gandhian, and liberal intellectual. Clear? So what is meant by DPSP? DPSP यानी कि directive principle of state policies are meant for promoting the idea of social and economic democracy. Since this is talking about the economic and social democracy. And in the fundamental rights, we have discussed the political democracy. Okay, so we have covered the political democracy, economic democracy, and social democracy. When we talk about the social democracy and economic democracy, it is related to the DPSP. When we talk about the political diplomacy, it is related to the fundamental rights. I hope this point is clear. ठीक है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की। ठीक है। दे सीक टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, यानी कि जब बात होती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो इनका है मीन कि आपको एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। यू हैव टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसाइबल। यानी कि अगर मैं बात करूं डीपीएसपी जस्टिसाइबल है या नहीं, क्योंकि हमने भी फंडामेंटल राइट देखे थे, उसमें फंडामेंटल राइट जस्टिसाइबल थे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डीपीएसपी, डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसाइबल, तो इट इज नॉन जस्टिसाइबल। फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर। In simple meaning, what is meant by the non-justifiable? They are not enforceable by the court of law for their violation. Unlike the fundamental rights, if the fundamental rights are violated by the law, you can go for the Supreme Court. But if the DPSP is violated, you cannot go for the court. It is simple meaning that non-justifiable. Clear? Clear? I hope this is clear. So now, Constitution declares itself that these principles are fundamental in governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in the making laws. जैसे कि मैंने सबसे पहले बात की थी कि नियम बनाते समय सरकार को ध्यान रखना होगा कि संविधान ने उसे कुछ निर्देश दिए हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं राज्य के निर्देशक तत्व। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इनका कंट्रीब्यूशन होगा सरकार बनाने में, कि सरकार जब आप सरकार आई, आपने उन नियमों का पालन नहीं किया जो संविधान में दिए गए हैं, तो जनता क्या करेगी? आपको कुर्सी से हटा देगी एंड गवर्नमेंट विल बी चेंज्ड। सो दे इम्पोज, ये क्या कर रहे हैं? ये इम्पोज कर रहे हैं एक मॉरल ऑब्लिगेशन, है ना, ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि अगर आपने नियम उस तरीके से नहीं बनाए कि जो निर्देश दिए गए हैं, तो क्या होगा? सरकार आपको वोट नहीं देगी और आपकी सरकार चली जाएगी। यानी कि ये क्या हो गया? मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया, नैतिक जिम्मेदारी हो गई, नैतिक दायित्व हो गया, नैतिक क्या हो गया? ऑब्लिगेशन आपके पास हो गया कि आपको पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर अबाउट डीपीएसपी। अब हम बात करते हैं कि डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो व्हाट विल यू हैपन? कौन सुपीरियर है और कौन जूनियर है, इसकी बात करें तो इसका सेटलमेंट हुआ था मिनर्वा मिल केस 1980। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। यानी कि मिनर्वा मिल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दोनों का समन्वय ही क्या है? भारतीय संविधान में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर है और जो राज्य के निर्देशक तत्व है वो नीचे है। दोनों क्या है? दोनों बैलेंस की बात की, दोनों बैलेंस की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। So now we will discuss next topic is next feature is fundamental duties. Fundamental duties. So in the original constitution did not provide for the fundamental duties for the citizen. They are added during the operation of internal emergency that was happened 95 to 97 by the, so it was added by the 42 Amendment Act 1976. We talk about 42 Amendment Act, the mini constitution. That is it. On the recommendation of Swarn Singh Samiti. So it was added by the recommendation of Swarn Singh Samiti at the 42 Amendment Act 1946. And one more addition was that 86 Constitutional Amendment 2002 has added one more fundamental duty. So fundamental duty was not initially in basic constitution. It was added later by 42 Amendment Act, 42 Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of
on the recommendation of Swarn Singh Samiti, Swarn Singh Committee. I hope this point is now clear. ठीक है, it was added at part 4A, right, of the Indian Constitution, and it has a specific article. Only one article. It has one article is related to this, that is Article 51A. ठीक है, what is in it? It consists only one article, that is 51A, and what is in it? It is in it respect to the Constitution, respect to the national flag, to protect the sovereignty, unity and integrity of India, and like this many kind of things is it. It has 11 fundamental duties in our Constitution, right? So what was the basis to add? What was the basis to add in this Constitution? So fundamental duties serve as the reminder to the citizen that while you are enjoying their rights, they have to quite conscious about your duty. यानी कि जब आप अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए. दिस इज द बेसिस टू ऐड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हाउएवर लाइक डीपीएसपी द ड्यूटीज आर आल्सो नॉट जस्टिसाइबल. यानी कि डीपीएसपी की तरह ही ये भी जस्टिसाइबल नहीं है, नॉन जस्टिसाइबल. आई होप यू आर अवेयर अबाउट द मीन बाय नॉन जस्टिसाइबल. यानी कि अगर किसी फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य को लागू नहीं किया जा सकता है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज a secular state. We all are aware about that India is a secular state. We all are aware that India as a secular state. यानी भारत एक संप्रभु देश है, ये इसकी एक खूबसूरती है और इस संविधान का एक क्या कह सकते हैं विशेषता है. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर द सेकुलर स्टेट. इट डज नॉट अपहोल्ड. व्हाट इज मीन बाय दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, व्हाट इज मीन्ड बाय दैट? What is the meaning of the secular state? It simply means that it does not uphold any particular religion as official religion of the India. यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब सिंपल ये है कि भारत किसी भी संविधान को अपना ऑफिशियल संविधान किसी भी धर्म को अपना ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक धर्म नहीं बताता है. यानी कि कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है भारत का. जैसे पाकिस्तान होगा, ऑफिशियल धर्म क्या है, वो धर्म के आधार पर क्या है, उनका मुस्लिम, उनका ऑफिशियल धर्म है आधिकारिक रूप से. ठीक है, तो सिंपल समझ गए आपको व्हाट इज मीन बाय सेक्युलर. यानी कि सरकार का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है. द टर्म, इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक टर्म दैट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, सॉरी, राइट. तो द टर्म वाज एडेड इन प्रीएम्बल बाय द 42 Constitutional Amendment Act 1970. I hope this is clear. Okay, so what is meant to add this word in preamble? We all are know preamble is the philosophy and fundamentals values it has. So preamble secures to all the citizens of India liberty of belief, faith and worship. यानी कि जो भारत का प्रियम्बल है वो सभी प्रकार की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता का क्या है, एक दार्शनिक रूप है. इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव मेनी आर्टिकल्स रिलेटेड दिस. आर्टिकल 14 की हम बात कर लें, आर्टिकल 15 की हम बात कर लें, आर्टिकल 15 की हम बात कर लें, 25 हो गया, 6, 26, 7, 28, 29. तो इट इज रिलेटेड टू द secular state. These articles denote that India is a secular state. Simple, clear. Next, अगर हम बात करें थोड़ा कॉन्सेप्ट की, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेकुलरिज्म. जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म दो तरीके का होता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म एंड नेगेटिव सेकुलरिज्म. इफ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव सेकुलरिज्म which was famous in the West, it simple means that the complete separation between religion and state. यानी कि इफ यू टॉक अबाउट द स्पेशल, एक मिनट, नाउ सेक्युलरिज्म.
concept. We have two types, positive secularism and negative secularism. It is famous in the Western countries, which is meant by complete separation between state and religion. This is the negative secularism. If we talk about the positive secularism, Indian Constitution embodies the positive concept, which is meant by giving to the equal right to all and protecting all the religion and protection all religion. यानी कि जब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता कॉन्सेप्ट की, तो हम दो तरीके देखते हैं, नकारात्मक और धनात्मक प्रतिरूप. अगर बात करो नकारात्मक की, तो नकारात्मक देखते हैं कि इसमें होता है सेपरेशन, यानी कि कंप्लीट अलगाव. यानी कि जो चर्च है धर्म की संप्रदाय की बात करता है, जो धर्म की बात करता है उसका, और जो राज्य है जो राजनीति की बात करता है, उन दोनों को क्लियर अलग अलग रखा गया. इसे कहेंगे हम नकारात्मक सेकुलरिज्म. जब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म की, यानी कि उसमें क्या होता है कि सभी धर्म को समान सम्मान मिलना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता. मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एबोलिश्ड द ओल्ड सिस्टम ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, बट however it provide the temporary reservation for SC and ST to ensure the adequate representation. यानी कि हम, हालांकि संविधान ने पुरानी जो कम्युनल व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया, लेकिन अभी भी आरक्षण के रूप में जो टेम्पररी प्रोविजन है दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनका जो SC ST है उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके. इट इज नॉट ए बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फीचर हम बात करें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, FRANCHASI फ्रेंचाइज. ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एज ए बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. हम सभी को पता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है. राइट. तो दिस इज द, ये वही फीचर है कि भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा. राइट. इससे पहले 61वें संविधान संशोधन 1988 की मैं बात करूं तो ये जो एज थी वो 21 हुआ करती थी, और इसको घटा के 18 कर दिया गया है 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा. राइट. तो if we talk about in English, every citizen who is not less than 18 year of age has a right to vote without any discrimination of the caste, race, religion, sex and literacy and wealth. So guys, be remember these points: caste, race, religion, sex and literacy and wealth, because of we will see further more an article on fundamental rights. So there will be also criteria, but we have to very specific on the criteria. Right now caste, race, religion, sex, literacy and wealth is the criteria. ठीक है. The voting age was reduced to 18 from the 21 year in 89 by the 61 Amendment Act 1988. यानी कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 1989 ईस्वी में 21 साल से 18 कर दी गई थी वोट देने का अधिकार को. ठीक है. हमने क्यों किया ऐसा? मतलब हमने एक साथ ही सबको वोट देने का अधिकार क्यों दिया? Why it's a unique feature of the Indian Constitution. यानी कि भारत के संविधान का क्यों दिया गया और क्या था? तो by this we made broad based enhance its self respect. यानी कि हमने तो क्या किया, डेमोक्रेसी का बेस बढ़ा दिया, क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि जो शक्ति थी उसका अधिकार किसको दिया गया है. शक्ति कहां से डिराइव होंगी? भारत की जनता से. याद है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जहां पे कहा गया था कि शक्तियों का स्रोत क्या होगा? भारत की जनता होगी. तो भारतीय जनता को शक्ति कैसे दी जा रही है? वोट देने के अधिकार से दी जा रही है. यानी कि जो व्यक्ति 18 साल का होगा वोट देगा और अपने अधिकार को यूज करेगा, और अपने अधिकार को यूज करेगा तो क्या करेगा? वो सरकार से उम्मीद लगाएगा, और सरकार क्या करेगी? उन
ओपिनियन के हिसाब से काम करेगी। अगर वो ओपिनियन के हिसाब से काम नहीं करेगी तो सरकार चेंज हो जाएगी। ये कहा दिया गया, ये दिया गया राज्य के नीति तत्व में, आज ही हमने डिस्कस किया है। देख रहे हो किस तरीके से भारत की जनता को एम्पावर किया जा रहा है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी का जो बेस है उसे बढ़ाने के लिए खुद में एक क्या है कि हम सरकार का हिस्सा है, ये वाली फील आने के लिए हम सरकार का हिस्सा है। टू एनहेंस द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, यानी कि खुद का एक क्या है, सम्मान बढ़ रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ रहा है, प्रेस्टीज बढ़ रही है ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, सो इसलिए क्या किया, एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार के रूप में भारत के सभी लोगों को दिया गया जो 18 साल से, जिनकी 18 साल से ऊपर है। ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट, इससे क्या फायदा होगा, जो माइनॉरिटीज हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको क्या होगा, उनको भी अधिकार होगा कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या बनवा सके, नियम कानून बनवा सके, अपने जो जनप्रतिनिधित्व है, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको सरकार में भेज सके। ठीक है, तो इससे दो फायदे हो रहे हैं, ब्रॉड बेस हो रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ रही है सबकी। दूसरा जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको भी क्या है, अधिकार दिया जा रहा है कि ताकि वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने जनप्रतिनिधित्व सरकार में भेज सके और अपनी बातें रख सकें सामने, क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिंगल सिटीजनशिप। थ्रू दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड एनविसेस द ड्यूअल पॉलिटी। इट प्रोवाइड फॉर द ओनली सिंगल सिटीजनशिप दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। इन सिंपल मीनिंग हम कहें कि भारत का संविधान एक फेडरल है, संघ है, संघात्मक संविधान है, जो दो स्तर की सरकार की बात करता है, सेंटर और स्टेट लेवल की। लेकिन अमेरिका की तरह यहां पर डुअल सिटीजनशिप नहीं है। इंडिया हैज नॉट डुअल सिटीजनशिप लाइक अमेरिका। इंडिया हैज ए सिंगल सिटीजनशिप, यानी संघ के संघात्मक होने के बाद भी भारत की जो नागरिकता है वो सिंगल नागरिकता है, एकल नागरिकता की बात करता है। दिस द यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडिया, यानी संघ होने के बाद भी एक एकात्मकता की बात यहां पे की गई है। लाइक अमेरिका, अमेरिका क्या है, अमेरिका हैज डुअल सिटीजनशिप। ईच पर्सन ऑफ द अमेरिका इट हैज ए सेंट्रल लेवल सिटीजनशिप एंड स्टेट लेवल एज वेल। यानी कि अगर अमेरिका का कोई नागरिक है, वो अमेरिका में रह रहा है, तो उनके पास सेंट्रल लेवल की नागरिकता होगी और राज्य जिस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता भी होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि आपातकाल से संबंधित प्रोविजन। आपातकाल, जब हम बात करते हैं आपातकाल इमरजेंसीज की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट elaborate emergency provisions to enable president to safeguard, अब समझना ग्राउंड, to safeguard the sovereignty, unity and integrity or security of the country, the democratic political system and the constitution। यानी कि भारत का संविधान आपातकाल के प्रबंध, आपातकाल से संबंधित प्रोविजन डालता है, जिसमें राष्ट्रपति सेफगार्ड करता है कौन सी वैल्यूज को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम उसको सेफगार्ड करता है, अखंडता, एकता और सुरक्षा, इन सबको क्या करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये जब इन चीजों में से अगर किसी का भी वायलेशन होता है तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, एक्टिव सुप्रीम कोर्ट नहीं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी होती है कि वो इमरजेंसी अप्लाई कर दे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी, यानी भारत के संविधान में तीन टाइप की इमरजेंसी की बात की गई है। वन इज नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, सेकंड इज स्टेट इमरजेंसी, एंड थर्ड विल बी द फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई होप दिस इज क्लियर। तीन इमरजेंसी की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनल इमरजेंसी। इन इमरजेंसी को हम डिटेल में करेंगे, वी हैव डेडिकेटेड चैप्टर ऑन दिस, वी विल डिस्कस इट फर्दर। यहां से आप इतना समझिए कि तीन इमरजेंसी की बात करता है संविधान, दिस इज यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट है हमारा थ्री टायर गवर्नमेंट, दिस इज द लास्ट फीचर वी हैव रेड इन डिटेल, थ्री टायर गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट फीचर है हमारा थ्री टायर गवर्नमेंट। We have discussed this topic in previous class. We have a three tier of government. One is central level, parliament, and judicial system, Supreme Court. When we talk about the other thing on the board, state level is legislative assembly. If we talk about judicial, so we have high courts. When we talk about the third level, local bodies, I wrote on the board the Nagarpalika, Nagar Nigam and PRIs. Originally क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं थे, बट लेटर ऑन 73 अमेंडमेंट एक्ट एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट
it will be introduced, they are introduced and incorporated in the Indian Constitution. Now the PRIs and म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों ही संविधान में एक संवैधानिक दर्जा रखते हैं, ठीक है, और इन दोनों को भाग 9 और 9A में जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 9 में जोड़ा गया था। पार्ट 9 की मैं बात करूं तो रूरल लोकल बॉडी जोड़ा गया था, इनकी PRIs को लिख देता हूं, इट वॉज एडिड बाय द 73 Constitution Amendment Act 1992 PRIs. A municipal corporation, it was added by 74 1992, है ना, राइट, और दोनों को इनेक्ट किया गया था 1993 में। I hope it is clear, and it is in 9A, sorry 9, it is part of part 9 and it is part of 9A. I hope this is clear, okay, and it is also, both are also the part of पार्ट नहीं, शेड्यूल लिखने वाला था यहाँ पे, वो शेड्यूल 12। आई होप दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। वी विल डिटेल डिस्कस ऑन दिस, राइट, we will detail discuss on this in the next lectures when we have related to this topic, right. One more thing, this both we are talking in this or it will be right, and sorry, it will be related to the 11th schedule. So there is no confusion, the municipal corporation is related to the 12th schedule and the PRIs are related to the 11th schedule of the Constitution, and part will be 9, and municipal corporation, it is related to the part 9A schedule 12, and it was added by the 74 Amendment Act 1992 and it was enacted or enforced by 1993. So this is the basic feature of the Indian Constitution. I hope it will be helpful to you and it is very easy to understand for this. So I request you to everyone to subscribe the channel to get the more information. Be attentive or be ready for the Constitution and also be ready for the competition, right. Thank you for watching this video. I hope it will be very helpful. Kindly share family and friends to get more updates. Hit the bell icon also. Thank you very much once again. Thank you.